Hello everyone, welcome back to my law channel, Law and Order with Kiran. In today's lecture, we will discuss about Section 12 of Indian Contract Act 1872, which deals with sound mind to contract. So the question arises, can a person of unsound mind ever sign a valid contract? Okay. The answer depends on one important factor, whether the person was of sound mind at the time of making the contract. Okay, so in this lecture we will learn the definition of sound mind, the two-part legal test, important illustration and a quick revision at the end. So let's start it. So definition क्या कहती है? Who is of sound mind to contract? A person is of sound mind for the purpose of making a contract if at the time of contracting he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect on his interest. So there are two essential conditions. पहला क्या होना चाहिए? The person must be capable of understanding the contract. Okay, and the second is he is able to make a rational judgment regarding its consequences. So इसका मतलब क्या हुआ कि person sound mind कब कहा जाएगा? When he is entering into a contract and he is capable of understanding that his mental condition is present. Okay, he is mentally present and he is capable of forming a rational judgment as to its effect on his interest. That means कि उसको समझ में आ रहा है. Rational judgment means क्या होता है कि उसको समझ में आ रहा है कि वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कोई सेल डीड साइन कर रहा है, तो उसका रेशनल जजमेंट क्या होगा, मीन्स उसका जो लीगल इफेक्ट क्या होगा, उसके इंटरेस्ट पे असर क्या पड़ेगा. मीन्स जैसे उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी, ठीक है, सेल डीड साइन किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल डीड साइन किया, तो अगर उसने सेल डीड साइन किया है तो प्रॉपर्टी अभी उसकी नहीं रहेगी, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया ना उस प्रॉपर्टी से, तो ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा. तो अगर उसको ये चीज़ समझ में आ रही है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिज मेंटल कैपेबिलिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन ही इज ऑफ साउंड माइंड, then also he can enter into a contract. Okay, there are two parties, capable of understanding the contract and the capable of judging its effect on his own interest. So part वन क्या है? Usually unsound, illustration से समझते हैं. Usually unsound, occasionally sound. ये first part क्या है? Usually unsound and occasionally sound. The person usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. A person usually क्या होता है? Unsound mind है but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. इसका मतलब क्या? कोई पर्सन है जो पीरियोडिक इंसैनिटी से सफर कर रहा है, मीन्स उसकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है, बट ओकेजनली क्या होता है? ही इज ऑफ साउंड माइंड. ओकेजनली क्या होता है? उसकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट है एंड ही इज able to understand all the things, then he can enter into a contract. So example क्या कहता है? Mr. X suffers from periodic insanity but signs a sale deed during a phase of complete clarity. Okay, fully understanding its terms and effect on his property. मिस्टर एक्स क्या है? सफर कर रहे हैं फ्रॉम पीरियोडिक इंसैनिटी, मतलब कुछ टाइम के लिए उनको इंसैनिटी होती है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है, बट उन्होंने एक सेल डेट साइन किया ड्यूरिंग फेज ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी. उस टाइम पे उन्होंने, जब वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट थी पूरी तरह से, देन ही इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देन ही इज फुली अंडरस्टैंडिंग इट्स टर्म्स. वो एग्रीमेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा उनकी प्रॉपर्टी पे, उनको समझ में आ रहा है, देन ही इज ऑफ साउंड माइंड. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड. एंड ही वाज, क्योंकि ही वाज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम मोमेंट ऑफ साइनिंग. सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या है? यूजुअली साउंड. यूजुअली साउंड, पर्सन इज यूजुअली साउंड बट ओकेजनली अनसाउंड. यूजुअली साउंड मतलब पर्सन, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट है ऑल द टाइम, बट
ओकेजनली क्या होता है, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसने ड्रंक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है, ड्रंकेड है या इंटॉक्सिकेटेड है बहुत ज़्यादा, और उसको उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कोई सेल डीड साइन कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, देन वो क्या होता है, वो उस टाइम पे अनसाउंड माइंड है। अगर उसने उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई सेल डीड साइन किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर वाइज ऑर्डिनरी ऑफ साउंड माइंड बट साइंस एन एग्रीमेंट वाइल हैवली इंटॉक्सिकेटेड। उन्होंने साइन किया, कोई एग्रीमेंट साइन किया कब, जब उन्होंने पूरी तरह से, वो इंटॉक्सिकेटेड थे, उन्होंने नशा किया हुआ था और उनको समझ में नहीं आ रही, ही वाज नॉट इन हिज मेंटल कैपेबिलिटी एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड, and he was not able to understand the terms of the contract and the consequences of the contract. उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये मैं कोई सेल डीड साइन कर रहा हूँ, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट या सेल डीड साइन किया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ही लैक्ड, क्योंकि ही लैक्ड कैपेसिटी एट दैट मोमेंट। उनकी जो मेंटल कैपेसिटी थी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, मेंटल एबिलिटी उनकी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, तो ही वॉज नॉट इन हिज साउंड माइंड स्टेटस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 12 कहना क्या चाहता है कि पर्सन होता है, जो साउंड माइंड पर्सन है, वही कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। साउंड माइंड क्या होता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, उसको उसकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट है एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, और उसको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, उस कॉन्ट्रैक्ट के, सील डीड के, उसके इफेक्ट उसको समझ में आ रहे हैं, देन द पर्सन इज in the condition of sound mind and he can enter into a contract. Okay, soundness is tested at the time of contracting. Okay, at the time ये होता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, सील डीड साइन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है। ओके, वो उस टाइम पे उसकी मेंटल कैपेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं, उसको समझ में आ रहा है, ही इज इन द कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है, ओकेजनली साउंड, इसमें पर्सन क्या होता है, ओकेजनली साउंड माइंड होता है, उसकी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज, उस टाइम पे अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। ओके, सो ओकेजनल अनसाउंडनेस, इसका मीन्स क्या, मतलब क्या हुआ कि पर्सन हैवीली इंटॉक्सिकेटेड है, ओके, ड्रंकेड है, तो क्या होता है, ओकेजनली अनसाउंडनेस है वो, उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी क्या होती है, एब्सेंट है, और वो उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई सीएल डीड साइन करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा एट दैट टाइम। ओके, सो ये था आज का सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी योर suggestions related to my today's lecture. Okay, thank you.